गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक छोटा घर भी नहीं था। उन दिनों स्कूलों की संख्या कम होने के कारण वह पढ़ने और लिखने के लिए कभी स्कूल नहीं जा सका। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. अपनी गरीबी और अशिक्षा के बावजूद यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान था। वह लोगों के दर्द को समझने में सक्षम था और अक्सर साहस और बुद्धिमत्ता के साथ उनके मुद्दों को हल करने में उनकी मदद करता था। सुझाव और समाधान खोजने के लिए लोग उनसे मिलने आते थे। क्षमता के कारण वह लोकप्रिय हो गया। उनकी लोकप्रियता राजा तक भी पहुंची और उन्होंने उनसे मिलने के बारे में सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a moon, one day the king came to the cave where the wise, एक चरवाहे के रूप में तैयार और अपनी असली पहचान को छिपाते हुए राजा एक खच्चर पर चरवाहा की गुफा तक पहुंचा। जिस क्षण As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and with wise conversation. जिस क्षण चरवाहे ने उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा, वह उसका अभिवादन करने के लिए उठाया। वह यात्री को अपनी गुफा के अंदर ले आया और उसे पानी और भोजन दिया। राजा ने विश्राम किया और रात भर गुफा में उसके साथ रहा। राजा उसके दोस्ताना गर्मजोशी से स्वागत और ज्ञान के शब्दों से प्रभावित था। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, paying me the compliment of a visit." हालांकि राजा अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा था, उसने अगली सुबह से जाने का फैसला किया। उसने अपने गर्म और दयालु स्वागत के लिए गरीब चरवाहे का आभार व्यक्त किया। उसने जगह छोड़ने की अनुमति मांगी। चरवाहे ने राजा को महामहिम के रूप में संबोधित किया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए उसका आभार व्यक्त किया। The king was astonished as well as pleased. "He is indeed very wise," he thought to himself. "I need people like him to work for me." And the king appointed this humble shepherd the government of a small district. राजा आश्चर्यचकित था और उसकी बातें सुनकर खुशी से भर गया। उसने सोचा कि चरवाहा वास्तव में बहुत बुद्धिमान था। उसने जैसे लोग राजा की ज़रूरत थी, उसे राजा के लिए काम करना चाहिए और राजा ने उसे एक छोटे से जिले का गवर्नर बनाया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. सारी शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद चरवाहा विनम्र और विनम्र बना रहा। लोग उन्हें पसंद करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की सराहना करते थे। उनका व्यवहार सबके प्रति था। वह एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में लोकप्रिय हुए। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it with the treasure that he had secretly collected. दूसरे राज्यों के राज्यपालों ने इसके लिए ईर्ष्या विकसित की। वे राजा के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने उसे बेईमान कहना शुरू कर दिया और उसे कर के पैसे का हिस्सा अपने पास रखने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने उसके लोहे के सीने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके पास गुप्त रूप से एकत्र किए गए सभी खजाने थे।
After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे एक सामान्य चरवाहा कहा गया जिसे इस तरह के बेईमान व्यवहार की उम्मीद थी. At the first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain: the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. शुरू में राजा ने ऐसे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे करना पड़ा. उसे विश्वास नहीं हुआ कि राज्यपाल ने उसके साथ लोहे की छाती खींची है. उसने सोचा कि उसे हर समय अपने साथ लोहे की छाती रखने के कारण के बारे में पूछताछ करनी चाहिए. So one day, the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. इस प्रकार राजा ने महल में नए गवर्नर को बुलाया. वह अपने ऊँट पर आया था. हर कोई खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि ऊँट की पीठ पर उसके पीछे लोहे की छाती के बारे में सबसे अधिक बात की गई थी. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" यह देखकर राजा गुस्से में चिल्लाया और उससे उस लोहे की छाती को अपने साथ ले जाने का कारण पूछा. The governor smiled. He asked the servant to bring in this chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even of the king himself, when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. गवर्नर मुस्कुराया और अपने अटेंडेंट को उस संदूक को लाने के लिए कहा. सभी लोग इसे देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन जब इसे खोला गया तो उन्हें कोई कीमती सोना या चांदी नहीं मिला, बल्कि एक पुराना कम्बल मिला. चरवाहे ने इसे अपने हाथ में लिया, गर्व के साथ हाथ और राजा को समझाया कि यह उसका खजाना था. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. With the shepherd replied with quiet dignity, "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes." How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governor became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. लेकिन राजा को इस तरह के एक पुराने कम्बल को ले जाने का कारण जानने की उत्सुकता थी, जिस पर चरवाहे ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से जवाब दिया कि कम्बल उसका सबसे पुराना दोस्त था. आवश्यकता के समय में वह उसकी रक्षा करेगा. यदि राजा चाहे तो वह अपने नए कपड़े ले सकता था, लेकिन वह कम्बल उसे बहुत प्रिय था. राजा उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ. गवर्नर लज्जित थे. अभी यह सभी के लिए स्पष्ट था कि चरवाहा वहाँ का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था. उस पर गर्व महसूस करते हुए राजा ने उसे उसी समय देखने के लिए एक बड़ा जिला दिया. तो इसी के संग हमारी कहानी ख़त्म हुई. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी सदा उच्च विचार वाला जीवन अपनाना चाहिए. अगर हम वैसा करेंगे तो ना सिर्फ ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, बल्कि सभी का दिल भी जीत लेंगे. जिसके के संग हमारा चैप्टर ओवर हुआ. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.